پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اردو میں خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ آپ کے پرچہ سوالات میں ایک سوال میں آپ سے درخواست یا خط لکھنے کو کہا گیا ہوتا ہے۔ درخواست لکھنے کا طریقہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، آج کے سبق میں آپ کو خط لکھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ تو عزیز بچوں، آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ خط کسے کہتے ہیں۔ خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحریر، لکیر، نشان، مکتوب، نامہ اور چٹھی کے آتے ہیں۔ اصطلاح میں دو لوگوں کے درمیان تحریری گفتگو کو خط کہا جاتا ہے۔ خطوط نویسی اصناف نثر کی سب سے قدیم اصناف میں سے ایک ہے۔ ماضی میں فاصلوں پر رہنے والے لوگ، دور دور رہنے والے لوگ تبادلہ خیالات اور ایک دوسرے کی خیر خیریت جاننے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ ان لوگوں کا آپسی تبادلہ خیالات کا ایک ہی ذریعہ خط تھا۔ موجودہ موبائل اور انٹرنیٹ کے دور سے قبل خط کو ایک تحریری ملاقات کہا جاتا تھا، جس سے لوگ اپنے اپنے حالات سے ایک دوسرے سے آگاہ ہوتے تھے۔ خط کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ اس سے اگرچہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے تھے مگر ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہو جاتے تھے۔ موبائل اور انٹرنیٹ کی ایجاد نے موجودہ دور میں اگرچہ فاصلوں کو سمیٹ لیا ہے، فاصلے بہت کم ہو گئے ہیں، رابطہ بہت آسان ہو گیا ہے، نئے نئے ذرائع وجود میں آ چکے ہیں۔ سوشل میڈیا نے لوگوں سے رابطہ کرنے میں آسانی پیدا کر دی ہے اور خطوط نگاری میں بہت حد تک کمی واقع ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود اس کی اہمیت سے آج بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ای میل یعنی برقی خط، ڈیجیٹل خط قدیم خطوط کی ہی نئی شکل ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ عزیز بچوں، خطوط کی عام طور پر 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 نجی یا شخصی خطوط، نمبر 2 عمومی خطوط، نمبر 3 رسمی خطوط، نمبر 4 کاروباری خطوط اور نمبر 5 سرکاری خطوط۔ نجی خط ماں باپ، بھائی بہن یا کسی اور رشتہ دار اور دوست کو لکھے جانے والے خط کو نجی خط کہا جاتا ہے۔ عمومی خط اخبار کے مدیر کے نام لکھے گئے خط کو عمومی خط کہا جاتا ہے۔ رسمی خط علمی، ادبی، سیاسی اور ثقافتی تقریبات اور شادی بیاہ کی رسومات کے دعوت نامے کو رسمی خط کہا جاتا ہے، جس میں شادی کارڈ بھی آتا ہے۔ کاروباری خط کاروباری معاملات سے متعلق لکھا گیا خط کاروباری خط کہلاتا ہے۔ سرکاری خطوط سرکاری دفاتر کے درمیان ہونے والی خط و کتابت کو سرکاری خطوط کہا جاتا ہے۔ عزیز بچوں، خط لکھنے والے کو کاتب کہا جاتا ہے اور جس کے لیے خط لکھا جاتا ہے اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ خط کو مکتوب، مراسلہ، چٹھی یا نامہ بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز بچوں، خط کے 5 اجزاء یا حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پیشانی، نمبر 2 القاب، نمبر 3 آداب، نمبر 4 نفس مضمون اور نمبر 5 اختتام۔ پیشانی کاغذ کے سب سے اوپر دائیں جانب خط لکھنے کی جگہ اور تاریخ کو خط کی پیشانی کہا جاتا ہے۔ مثلاً جموں، سری نگر، جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں اس جگہ کا نام، اور اس کے نیچے تاریخ، جیسے میں نے یہاں لکھا 25 جولائی 2021 عیسوی، اس کو خط کی پیشانی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ امتحان میں لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے امتحانی مرکز یا امتحانی ہال، اور اس کے نیچے آپ تاریخ لکھیں گے دائیں طرف سے کاغذ کے اوپر۔ اس کے بعد القاب پیشانی کے نیچے کچھ جگہ چھوڑ کر مکتوب الیہ یعنی جس کے لیے ہم خط لکھ رہے ہیں اس کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے القاب لکھے جاتے ہیں۔ مثلاً پیاری امی جان، محترم والد صاحب، پیارے دوست، استاد مکرم وغیرہ۔ اور القاب کے بعد آپ نے علامت ندائیہ لکھنی ہے۔ لمبے چوڑے القاب
लिखने से आपने गुरेज करना है और आपने बेतकल्लुफ अलकाब लिखना है। आदाब, अलकाब लिखने के बाद नई सतर में कुछ जगह छोड़कर मकतूब इलैह के मकाम और मर्तबे के मुताबिक आदाब के अल्फाज लिखे जाते हैं। मसलन अस्सलामु अलैकुम, सलाम मसनून, आदाब, तस्लीमात वगैरह। फिर उसके बाद आता है नफ्स मजमून। खात में जो कुछ लिखा जाए उसे नफ्स मजमून कहा जाता है। और उसके बाद इख्तिताम, कातिब मकतूब इलैह के मर्तबे और मकाम को मद्देनजर रखते हुए अपने लिए जो अल्फाज लिखता है उसे इख्तिताम कहते हैं। मसलन आपका प्यारा बेटा, आपका फर्माबरदार शागिर्द, आपका छोटा भाई, आपकी प्यारी बहन, आपका दोस्त वगैरह। तो ये खात के अज्जा थे, इनको आपने जहन नशीन करना है और किसको कहाँ लिखना है, पेशानी कहाँ लिखनी है, अलकाब कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, आदाब कैसे लिखे जाते हैं और किस जगह पर लिखना है, नफ्स मजमून, इख्तिताम, ये सब आपने मद्देनजर रखना है और इसके मुताबिक आपने खत लिखना है। तो प्यारे बच्चों, इन बातों को जहन में रखते हुए जब आप खत लिखेंगे तो आपके खत की शक्ल कुछ इस तरह की बनेगी। ये आपके खत की पेशानी होगी। इम्तिहान हाल 29 जुलाई 2021 ईस्वी। उसके बाद आपने अलकाब लिखना है। मोहतरम वालिद साहब, मोहतरम चाचा जान, प्यारे भाई, प्यारे दोस्त, प्यारी बहन, प्यारी अम्मी जान, जिसके लिए भी आप खत लिख रहे हो उसके मकाम और मर्तबे के मुताबिक आप यहाँ अलकाब लिखेंगे। उसके बाद आदाब आता है। आदाब में आपने लिखना अस्सलामु अलैकुम, सलाम मसनून, तस्लीमात, आदाब और अलामत निदाया आखिर पे लगानी है। उसके बाद आपके खत का मजमून है। आपने जो भी कुछ खत में लिखना है वो इस एरिया में आप लिखेंगे और आप अपने खत को आसान अल्फाज में लिखेंगे। गैर ज़रूरी बातों से आप परहेज करेंगे और बार बार आप एक ही बात को दोहराएंगे नहीं। तो ये आपके खत का मजमून होगा और आखिर पर आप लिखेंगे फ़कत, और यहाँ पर ये इख्तिताम है, आपका खैर अंदेश, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फर्माबरदार बेटा या आपका फर्माबरदार शागिर्द, जिसके लिए भी आप खत लिख रहे हो उसके मकाम और मर्तबे के मुताबिक आप लिखेंगे और उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। तो ये आपका खत होगा। ये बहुत खूबसूरत लगेगा और जो मुम्तहिन होगा, जो नंबरात देने वाला होगा, उसको आपका खत पसंद आएगा और मुझे उम्मीद है कि आपका कोई नंबर कम नहीं होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपके पर्चाए सवालात में ये सवाल आ जाए कि अपने वालिद साहब के नाम खत लिखिए जिसमें 5000 रुपये भेजने को कहा गया हो, तो आप लिखेंगे कागज़ की दाईं तरफ ऊपर से इम्तिहानी मरकज़, उसके नीचे तारीख, जैसे यहाँ मैंने लिखा है 25 जुलाई 2021 ईस्वी। उसके बाद कुछ जगह छोड़कर आप लिखेंगे प्यारे अब्बा जान, उसके बाद अलामत निदाया, फिर अस्सलामु अलैकुम, आदाब और उसके बाद अलामत निदाया, या अस्सलामु अलैकुम या आदाब या तस्लीमात, जो कुछ भी आपने लिखना हो, उसके बाद अलामत निदाया। फिर कागज़ की दाईं तरफ थोड़ी सी जगह छोड़कर आप अपनी दरख्वास्त का मजमून लिखना शुरू करेंगे कि कल ही आपका इनायतनामा मौसूल हुआ, मुलाजमत में आपकी तरक्की के बारे में जानकर इंतहाई खुशी हुई और मैंने अपने दोस्तों और असातिज़ा में मिठाई भी तकसीम की। प्यारे अबू, हमारे सालाना इम्तिहान के नताइज का आज ही ऐलान हुआ और एक खुशखबरी मैं भी आपको सुनाने जा रहा हूँ कि मैंने अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबरात हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है। यह सिर्फ आपकी और अम्मी जान की दुआओं और असातिज़ा कराम की मेहनत का नतीजा है। अब मुझे अगली जमात में दाखिला हासिल करना है और नई किताबें और कापियाँ वगैरह भी खरीदनी है। मेरी वर्दी भी पुरानी हो चुकी है और हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर ने नई वर्दी बनाने को भी कहा है। इसके अलावा स्कूल की कुछ फीस भी बकाया है जिसकी अदायगी 1 हफ्ते के अंदर लाजमी है। इसलिए मेहरबानी करके मुबलग 5000 रुपये बज़रिया मनी आर्डर जितनी जल्दी मुमकिन हो सके भेज दें ताकि मुझे यहाँ किसी मुश्किल या परेशानी का सामना न करना पड़े। अम्मी जान और दीदी को मेरा सलाम कह देना। आपने फजूल बातें खत में नहीं लिखनी है और एक ही बात बार बार नहीं लिखनी है। आसान अल्फाज में और मुख्तसर तौर पर आपने खत लिखना है
और उसके बाद आपने लिखना है आपका फर्माबरदार बेटा अलिफ बे जीम। तो अजीज बच्चों, अगर सवाल में ये हो कि किताबें मंगवाने के लिए कुतुब फरोश के नाम खत लिखिए, तो आप लिखेंगे इम्तिहानी मरकज और उसके नीचे इसी तरीके से तारीख, और इतनी सी जगह छोड़कर आप लिखेंगे मोहतरम मैनेजर साहब, ग्रीन बुक सेंटर कामा गुजरनगर जम्मू, या जिस कुतुब खाने से आप किताबें मंगवाना चाहते हो उसका नाम लिखना है आपने, और उस जहां वो कुतुब खाना वाक़ा है उस जगह का नाम भी आपने लिखना है। तो उसके बाद आप लिखेंगे सलाम मसनून और अलामत निदाया। फिर इतनी ये जगह छोड़कर मंदरजा झेल कुतुब बजरिया पार्सल खात के आखिर पर दिए गए पता पर इरसाल करें। मुबलग 500 रुपये बतौर एडवांस बजरिया मनी आर्डर भेज दिए हैं, जिनकी रसीद खात के साथ मुंसलिक है। किताबें मौसूल होते ही मैं बाकी रकम की अदायगी करके पार्सल छुड़ा लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें ज़्यादा तफसील लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो किताबों के नाम आप ऐसे लिखेंगे, नंबर शुमार, नाम किताब, तादाद। नंबर 1 बहारिस्तान उर्दू दर्जा दहम 1 जिल्द। नंबर 2 फैरोजुल लुगात उर्दू 1 जिल्द। नंबर 3 तारीख उर्दू अदब 1 जिल्द। नंबर 4 फरहंग तलफ़ुज़ 1 जिल्द। या जो भी किताब आपने मंगवानी हो उसका नाम आप लिखेंगे, और उनकी तादाद 1, 2, 3 जितनी भी मंगवानी हो आप लिखेंगे, और आखिर पर आप लिखेंगे आपका मुखलिस अलिफ बे जीम। यहाँ आप अपना नाम और पता लिखेंगे। इम्तिहान में आप सिर्फ अलिफ बे जीम लिखेंगे। अगर सवाल ये हो कि अपने दोस्त या भाई के नाम खात लिखिए जिसमें तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली गई हो, तो आप इस तरीके से लिखेंगे इम्तिहान हाल और ऐसे तारीख। फिर आप लिखेंगे जगह छोड़ के मेरे प्यारे दोस्त या मेरे अजीज भाई, और उसके बाद अलामत निदाया। फिर आप लिखेंगे सलाम मसनून या आदाब या तस्लीमात, जो कुछ भी आपने लिखना है वो आप लिखेंगे और अलामत निदाया लगाएंगे। प्यारे बच्चों, आप जगह का खास ख्याल रखेंगे कि यहाँ कितनी जगह छोड़नी है, इधर कितनी जगह छोड़नी है, यहाँ कितनी जगह छोड़नी है, ये कहाँ लिखना है, इख्तिताम कहाँ लिखना है, इस पर आपने पूरी तवज्जो रखनी है। तो फिर आप अपने खात का मजमून यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। कल ही आपका खात मिला, मालूम हुआ कि आप तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को देख देख कर तालीम से उकताने लगे। आप ये मायूसी की बातें कब से करने लगे? आप तो इल्म के रस्या थे और हमेशा अज़्म व हिम्मत की बातें करते थे। मेरे दोस्त या मेरे भाई, तालीम का मकसद सिर्फ नौकरी हासिल करना नहीं, बल्कि इससे इंसान की ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी नशोनुमा मकसूद है। यानी तालीम का असल मकसद होता है इंसान की ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी नशोनुमा। तालीम से इंसान के अंदर काबिलियत और लियाकत पैदा होती है, और आला तालीम याफ्ता इंसान अपने हम असरों, अपने हम ज़माने, अपने वक़्त के लोगों में इनफरादियत और मुमताज़ मकाम हासिल करता है। उसकी इज्जत की जाती है और वो सब की निगाहों का मरकज़ बन जाता है। तालीम एक ऐसा जेवर है जो इंसान के किरदार को संवारता है और उसे अशरफुल मखलूकात बनाता है। तालीम इंसान के लिए रिज़्क़ के ऐसे दरवाजे खोल देती है जो इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होते। इन मकासद को पेश नज़र रखकर तालीम हासिल करोगे तो आप तालीम की बरकतों से माला माल हो जाओगे। आप बहुत ज़हीन और मेहनती हो। अगर आपने तालीम पर तवज्जो दी और उसकी अहमियत को समझते हुए मेहनत की, तो मुझे उम्मीद है कि आप न सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन करोगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे। अपनी सेहत का भी ख्याल रखा कीजिएगा। फ़कत आपका दोस्त अलिफ बे जीम। तो प्यारे बच्चों, आपने खत को आसान अल्फाज में लिखना है, और कम से कम आपके खत के मजमून में 2 पैराग्राफ होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा। और इम्तिहान में आपने कोशिश करनी है कि आपका खत जो है पूरे 1 सफ़े पर आ जाए। अगर 1.5 सफ़े तक भी चला जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक ही सफ़े पर 2 या 3 पैराग्राफ में आपका खत मुकम्मल हो जाए। तो प्यारे बच्चों, ये खत लिखने का तरीका था। मुझे उम्मीद है कि आपने इन बातों को ज़हन नशीन किया होगा और आपने खत लिखने का तरीका सीख लिया होगा। अगर आपने इस तरीके से खत लिखा तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है
इस सवाल के पूरे नंबरात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसी के साथ आज का सबक इख्तिताम पजीर होता है। नए सबक के साथ इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।